जी, वेलकम टू क्लास। दिस इज इन्वायरमेंटल स्टडीज BE 181। तो आपकी इन्वायरमेंटल स्टडी की क्लास है। आपका वेलकम है यहाँ पर। 181 आपकी इन्वायरमेंटल स्टडी की क्लास है। हम थर्ड सेकंड यूनिट हम पढ़ रहे हैं इसमें, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर हम कुछ अब यहाँ तक पहुंचे हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल को पढ़ेंगे पलक जी। यस। By now, you must be well aware that the living world depends upon the flow of energy and the circulation of nutrients through ecosystem. Both influence the abundance of organisms, the metabolic rate at which they live, and the complexity of the ecosystem. You have already studied that energy is ultimately lost as heat forever in terms of the usefulness of the system. On the other way hand, nutrients of food matter are never lost or used up. Instead, they can be recycled again and again. Identifyly. Nutrients that are needed by organisms in large amounts are called macronutrients, while those which are needed in minute about or terraces are called micronutrients. Among more than 100 chemicals that occur in nature, about 40 are present in living organisms. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus in the form of elements and compounds make up 97% of the mass of our bodies and are more than 95% of the mass of living organisms. In addition to these, 15 to 25 other elements are needed in some form for the survival and good health of plants and animals. These elements are mineral nutrients are always in circulation, moving from non-living to living and then back to the non-living components of the ecosystem in more or less a circular fashion. This is known as bio, bioge, biogeochemical cycling. There are two basic types of cycles depending on the nature of the reservoir. Gaseous cycle, where the reservoir is the atmosphere or the hydrosphere, and sedimentary cycle, where the reservoir in the earth's crust. जी पलक जी, कहाँ तक रीड किया आपने? सर सेडिमेंट्री साइकिल तक, नीचे स्क्रॉल करूं? अच्छा These two ये, points. ओके ओके, हाँ, अर्थ का जो क्रस्ट है यहाँ तक। जी प्रियांशी जी, आप एक्सप्लेन करेंगे? Yes. By now, you must be well aware that the living world depends upon the flow of energy and the circulation of nutrients through ecosystem. अब तक हम इस चीज से ये चीज जान चुके हैं कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं वो किस पे डिपेंड है, एनर्जी के फ्लो पे डिपेंड है और सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट होते रहते हैं इकोसिस्टम पे, उस पे डिपेंड्स है। हम सारे लोग जो है न्यूट्रिएंट्स पे और एनर्जी पे डिपेंड है। बोथ इन्फ्लुएंस द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनिज्म, इन्फ्लुएंस द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है द मेटाबॉलिक रेट एट विच दे लिव। जो जिस मेटाबॉलिक रेट पे वो लिव करते हैं, जो जिस मेटाबॉलिक रेट पे वो जिंदा रहते हैं, उनको उसको अबंडेंस करता है वो। एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम, और जो इकोसिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी वो इन्फ्लुएंस करता है।
You have already studied that energy is ultimately lost as heat forever in terms of usefulness of the system. हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी है वो अल्टीमेटली लॉस्ट एज हीट फॉरएवर, कि वो एक ऐसी टर्म है जो कि लॉस्ट है हीट फॉरएवर, उसमें मतलब हीट होती है ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के लिए यूजफुल है वो एनर्जी, वो हमेशा हमारे लिए यूजफुल रहेगी. On the other way hand, nutrients of food matter are never lost as used up. और दूसरे हाथ पे जो हमारे nutrients है वो भी हमारे कभी never lost और used up, वो कभी lost नहीं होते हैं और used up होते हैं हमेशा. Instead they can be recycled again and again finitely. ये कह रहे हैं कि हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो हमारी एनर्जी है वो भी हम दोबारा से यूज कर सकते हैं और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसको भी हम दोबारा रिसाइकल कर आराम से यूज कर सकते हैं. Nutrients that are needed by organism in large amount are called micronutrients. Nutrients that are needed by organism, जब organism को nutrients को large amount में मतलब ज्यादा amount में चाहिए होते हैं तो उनको हम macronutrients बोलते हैं. While those which are needed in minute amount of traces are called micronutrient. और जिनको थोड़ा सा ही चाहिए होता है, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. मतलब जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं मैक्रो मतलब बड़े साइज पे, माइक्रो मतलब छोटे साइज पे, तो ऐसे ही इसमें भी है. Among more than 100 chemicals that occur in nature, about 40 are present in living organisms. हमारे जो नेचर में 100 केमिकल्स है जो रहते हैं, लेकिन उनमें से जो 40% है, मतलब जो 40% प्रेजेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है. जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस in the form of elements and compounds make up 97% of the mass of our bodies. जो ये सारी गैसेस दे रखी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स के फॉर्म में और कंपाउंड्स के फॉर्म में 97% हमारी बॉडी का मास बनाते हैं and are more than 95% of the mass of the all living organisms. और जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके 95% बनाते हैं. In addition to these, 15 to 25 other elements are needed in some form of the survival and good health of the plants and animals. इनके मतलब इनके अंदर 15 से लेके 25 तक और एलिमेंट्स हमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो सर्वाइवल है और जो उनकी गुड हेल्थ है वो अच्छे से हो सके. These elements or mineral nutrients are always in circulation, moving from non-living to living. जो हमारे सारे एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और 15 और 20 और जो नए एलिमेंट्स हैं और जो हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, सर्कुलेशन करते रहते हैं, नॉन लिविंग से वो लिविंग पे जाते रहते हैं बार बार, देन बैक टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इन मोर और लेस सर्कुलर फैशन. ये चलते एक साइकिल चलती रहती है, पहले नॉन लिविंग पे, फिर लिविंग पे, फिर नॉन लिविंग, फिर लिविंग पे. दिस इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग. इस ये जो साइक्लिंग है इसको हम बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग बोलते हैं. There are two basic types of cycles depending on the nature of the reservoir. हमारे पास दो बेसिक तरीके की साइकिल है जो कि नेचर पर डिपेंड है. फर्स्ट है गैसियस साइकिल, where the reservoir is the atmosphere or the hydrosphere. गैसियस साइकिल में जो हमारा रिजर्वियर होता है, मतलब जो इसमें इंपॉर्टेंट होती है वो होता है एटमॉस्फेयर और जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है वो. सेडिमेंट्री साइकिल where the reservoir is the earth. इसमें जरूरी हमारा जो होता है वो होता है अर्थ का क्रस्ट, उससे वो साइकिल होता रहता है. जी नेक्स्ट स्टूडेंट कौन रीड करेंगे? पलक जी आप रीड करेंगे. Okay, so gaseous cycles. Let us first study some of the most important gaseous cycles, namely water, carbon, and nitrogen. Water cycle, hydrologic. Water is one of the most important substances for life. On an average, water constitutes 70% of the body weight of an organism. It is one of the important ecological factors that determines the
structure and function of this ecosystem. Cycling of all other elements is also depend, dependent upon water as it provides a means for their transportation during the various steps, and it also serves as a solvent medium for their uptake by organisms. Water covers about 75% of the Earth's surface, occurring in lakes, rivers, and oceans. The oceans alone contain 97% of all the water on Earth. Much of much of the remainder is frozen in the polar ice and glaciers. Less than 1% water is present in the form of fresh water in rivers, lakes, and aquifers. Yet, yet this relatively negligible portion of the planet's water is crucially important to all forms of terrestrial and aquatic life. There is also underground supply of water. Soils near the surface also serve as reservoir for enormous quantities of water. See figure point 2.9. Water, water moves in the Earth's hydrologic cycle by connecting ocean, land, and atmosphere. The water from the ocean moves to the atmosphere by the process of evaporation. From the atmosphere, the water moves to oceans and land by precipitation in the form of rain or snow. From land, the rain and melted snow water are transported either by runoff from streams and rivers and subsurface groundwater into the oceans and or by evaporation from land and transpiration evaporation of water from plant leaves by plants to the atmosphere. Again, this cycle is driven by solar energy, in which about one third of all solar energy is dissipated on cycling is about 10 into 10, 20 grams of water. That is nearly 0.004% of the total. This amount of water is all the time moving the cycle. The rest of the Earth's water, as you know, is already bound in cold storage in the form of glaciers and ice. Gaseous cycles. Let us first study some of the most important gaseous cycle, namely water, carbon and nitrogen. अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे जो गैसियस साइकिल के इम्पोर्टेंट है उनको हम स्टडी करेंगे, जैसे वाटर, कार्बन एंड नाइट्रोजन. फर्स्ट आती है वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिक. वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस फॉर लाइफ. हम जो हमारा वाटर है, जो हमारा पानी है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में. अगर वो नहीं होगा तो हम शायद जिंदा भी नहीं हो सकते. ऑन एन एवरेज वाटर कंस्टिट्यूट्स 70% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अगर हम एवरेज ले तो जो वाटर है वो 70% बॉडी वेट अपने अंदर कंसिस्ट करके रखता है ऑर्गेनिज्म का. It is one of the important ecological factor that determines the structure and function of the ecosystem. ये एक ऐसा important ecological factor है जो कि ये डिटरमाइन करके रखता है स्ट्रक्चर और फंक्शन इकोसिस्टम का. मतलब ये एक ऐसा है जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर भी मेंटेन करके रखता है और फंक्शन भी डिटरमाइंस करके रखता है. Cycling of all other elements is also dependent upon water as it provides a means of their transportation. जो हमारे और जो अलग अलग एलिमेंट्स है जो कि साइकिलिंग करते रहते हैं, जो कि साइकिल में घूमते रहते हैं, वो भी पानी के ऊपर मतलब वाटर के ऊपर डिपेंड है. क्यों डिपेंड है? क्योंकि जो पानी है वो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम देता है, मतलब उन्हें साइकिल करने की एक ट्रांसपोर्टेशन देता है, एक व्हीकल देता है ड्यूरिंग द वेरियस स्टेप्स, एंड इट आल्सो सर्व्स एज अ सॉल्वेंट मीडियम.
मतलब अलग अलग स्टेप पे, जैसे पीछे हमने पढ़ते 4 स्टेप होते हैं, तो उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन देता है और अलग अलग वो सर्व भी करते हैं सॉल्वेंट मीडियम फॉर देयर अपटेक बाय ऑर्गेनिज्म। सॉल्वेंट मीडियम की ताकि वो मतलब उसमें घुल जाए या कुछ इस टाइप का, तो वो ताकि वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर तक जा सके। बिल्कुल। वाटर कवर्स अबाउट 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो वाटर है उसने अर्थ का 75% कवर करके रखा हुआ है अपने अंदर, अक्रिंग इन लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस, जो कि लेक्स में, रिवर्स में और ओशियंस में है। The oceans alone contain 97 of all the water on earth. जो हमारा ओशियन है उसने अकेले ने 97% जो वाटर है अर्थ पर वो अपने अंदर समा रखा है। मच ऑफ द रिमाइंडर इज फ्रोजन इन द पोलर आइस एंड ग्लेशियर। और जो भी 3% बचा है वो तो फ्रोजन है, मतलब जमा हुआ है पोलर आइस में और ग्लेशियर्स में, वो उन दोनों जगहों पे जमा हुआ है जितना भी हमारा बचा है। Less than 1% water is present in the form of fresh water in rivers, lakes and aquifers. हमारा 1% से भी कम पानी अब प्रेजेंट है एज अ फ्रेश वाटर, मतलब साफ पानी के तौर पे सिर्फ 1% से भी कम पानी हमारे पास बचा है रिवर्स में, लेक्स में और एक्यूफायर्स में। Yet this relatively negligible portion of the plant's water is crucially important to all forms of terrestrial and aquatic life. जो हमारा नेग्लिजिबल पोर्शन मतलब कम कम बचा हुआ जो पोर्शन है जो हमारे प्लैनेट्स पे, वो जो वाटर है जिसमें बचा हुआ है वो हमारे लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक्वेटिक लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देयर इज ऑल्सो अंडरग्राउंड सप्लाई ऑफ वाटर। हमें पता है कि अंडरग्राउंड सप्लाई भी होती है पानी की, मतलब जो जमीन के अंदर होती है। सॉइल्स नियर द सरफेस ऑल्सो सर्व्स एज रिजर्वियर फॉर इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वाटर। जो सरफेस के आसपास जो सॉइल होती है, जो कि रेत होती है, वो एक इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वाटर, मतलब इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में जो वाटर है उसको सर्व करती है, मतलब हमें देती है। Water moves in the Earth's hydrological cycle by connecting ocean, land and atmosphere. जो वाटर है वो जब मूव करता है, जब चलता है अर्थ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, वो किसको कनेक्ट करके चलता है? ओशियन को, लैंड को और एटमॉस्फेयर, इन तीनों को कनेक्ट करके वो साइकिल में चलता है। The water from the oceans move to the atmosphere by the process of evaporation. जो ओशियन में हमारा पानी है वो एटमॉस्फेयर में भाप बनकर इवेपोरेशन का प्रोसेस करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, आसमान वगैरह में चला जाता है। From the atmosphere, the water moves to the oceans and land by precipitation in the form of rain or snow. और जब एटमॉस्फेयर में भाप बन के जब पानी जाता है तो उसके बाद एटमॉस्फेयर से वो दोबारा से ओशियंस में और लैंड्स में चला जाता है, किसके फॉर्म में? रेन और स्नो। जब भी बारिश होती है या बर्फ पड़ती है उसके फॉर्म में, और प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस होता है उसका कर वो दोबारा से ओशियंस और लैंड्स में चला जाता है। फ्रॉम लैंड द रेन एंड मेल्टेड From land, the rain and melted snow water are transported either by runoff from streams and rivers and subsurface groundwater into the ocean. और फिर लैंड में से और द रेन एंड मेल्टेड स्नो, जो जमीन में जो रेन पड़ी है या जो मेल्टेड स्नो होती है, जब पिघल जाती है बर्फ, वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है स्ट्रीम्स और रिवर्स में। सब सरफेस ग्राउंड वाटर मतलब वो पेनिट्रेट की कर जाती है अंदर सरफेस में, वो नीचे चली जाती है ग्राउंड में, और ग्राउंड से वो फिर ओशियंस में चली जाती है। एंड और बाय इवेपोरेशन फ्रॉम लैंड एंड ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट लीव्स बाय प्लांट्स टू द एटमॉस्फेयर अगेन। फिर से क्या होता है, जब वो अंदर चली जाती है सरफेस के अंदर, वो फिर इवेपोरेशन का प्रोसेस करके, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करके, जो प्लांट्स की लीफ में पानी वगैरह होता है प्लांट्स में जो, और वो फिर एटमॉस्फेयर में भाप बन के चली जाती है। दिस साइकिल इज ड्रिवन बाय सोलर एनर्जी इन विच अबाउट 1/3 of the all solar energy is dissipated on cycling. ये जो साइकिल है ये सोलर एनर्जी की वजह से चल रही है। इसमें सोलर एनर्जी का 1/3 पार्ट है जो कि साइक्लिंग में यूज होता है। इज अबाउट 10 into 10 की पावर 20 ग्राम ऑफ वाटर, जिसमें 10 into 10 की पावर 20 ग्राम ऑफ वाटर यूज होता है। दैट इज नियरली 0.004% ऑफ द टोटल, मतलब सोलर एनर्जी का पूरा 0.004% जो यूज है वो हमारी साइकिल में किया जाता है। दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल द टाइम मूविंग इन द साइकिल।
ये हमारा पानी की अमाउंट है जो कि पूरा टाइम मूव करती रहती है साइकिल में। The rest of the Earth's water, as you know, is already bound in cold storage. जो अर्थ का और दूसरा मतलब इससे हटकर जो पानी है वो हमें पता है कि वो कोल्ड स्टोरेज में बंधा हुआ है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स और आइस। ग्लेशियर्स की फॉर्म में और आइस की फॉर्म में वो वहां पर स्टोर किया गया है, स्टोर है वो कोल्ड स्टोरेज में। सर इसको भी समझाना है लाइफ एज यू नो को। चलिए कशिश जी आप इसको रीड कीजिए, उसके बाद फिर प्रियांशी जी समझाएंगे। Okay, sir. The carbon cycle से ना sir जी यहाँ से रीड करना है। life okay. Life as you know depend on this continuous water cycle, but human activities are damaging the environment by polluting the atmosphere to such an extent that the rainfall pattern are getting altered, leading to prolonged periods extending over years in countries such as those of Africa, while causing devastating floods. The carbon cycle. Carbon is a minor constituent of the atmosphere as compared to oxygen and nitrogen. However, as you are well aware, carbon is the element that anchors all organic substances from coal and oil to DNA. Deoxyribonucleic acid, the compound that carries genetic information. Without carbon, life could not exist as it is vital and production of carbohydrates, organic matter through photosynthesis by plants and plants that use the inorganic carbon dioxide and water in the presence of solar energy and in the process of releasing oxygen in the atmosphere. Carbon is building block of all organisms. It is a component of protein that are the building block of life and lipids that form the component of protein that are the building block of from the plasma membrane of a plant and animals. Carbon is also a part of the ocean, air, and even rocks. Because of the Earth is dynamic place, carbon does not stay still and is on the move. The carbon is in the carbon cycle may be either organic or inorganic. The majority of inorganic carbon exits as carbon dioxide carbonate and hydrogen carbonate. The carbon found in organic compound is included in both the biotic and biotic parts of the ecosystem and is found in living and or dead organisms, fossil fuel, small organisms. ये एटमॉस्फेयर कार्बन पढ़ना है। चलिए पहले यहाँ तक हम इसको एक्सप्लेन जी पहले यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे प्रियांशी जी, उसके बाद फिर आगे हम पैरा पढ़ेंगे। ठीक है, बीच में पिक्चर्स भी आ गए हैं, इसमें आपको वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल दिखाया गया है। इससे पहले जो आपने पिक्चर्स देखी थी वो वाटर साइकिल की थी, अब कार्बन साइकिल की पिक्चर्स है। ठीक है जी सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। राइट, मेरी वॉइस ब्रेक है मेरा। अभी प्रियांशी जी एक्सप्लेन करेंगे। ओके
यस प्रियांशी जी, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? Yes, sir. Life, as you know, depends on the continuous water cycle, but human activities are damaging the environment. हमें पता है कि जो हमारी लाइफ है वो डिपेंड हो चुकी हुई भी है हमारी जो वाटर साइकिल में कंटिन्यूअस जो वाटर होना चाहिए वाटर पोल्यूट कर कर खराब कर कर और वो अब इतना हो चुका है कि जो रेनफॉल के जो पैटर्न्स है, जो रेनफॉल होने का तरीका होता है वो भी एक अलग तरीका सा हो गया, अल्टर्ड हो गया है वो भी, लीडिंग टू प्रोलॉन्ग ड्राउट